Assalamu alaikum. So we left at क्या कहते हैं हमने we did standard deviation, we did क्या कहते हैं वो mean median mode जो central tendency होता है, right? So अभी तक हमारा the क्या कहते हैं the data analysis part is not done क्योंकि तुम्हारे AS psychology के अंदर what happens is कि sometimes they ask you to draw graphs, design graphs, yeah, read graphs and find out what they mean, right? So you're supposed to also understand कि भाई हमें ग्राफ बनाना भी पड़ेगा, उसको एनालाइज करना भी पड़ेगा, and we have to write what does the graph mean. So for example, you can find graph if you कोई AS का जो चिंपैंजी वाली स्टडी यामामोटो वाली, right? तो उस चैप्टर के अंदर तुम्हें नजर आएगा ग्राफ्स बने हुए, राइट? सो देयर वाज अ क्वेश्चन एग्जाम्स के भाई यामामोटो की स्टडी का कोई ग्राफ दिया गया था एंड दे आस्क इसका क्या मतलब है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल यू हैव योर पेपर 2, तो पेपर 2 के अंदर भी स्पेशली पेपर 2 के अंदर ग्राफ बनाने का पूछते हैं. सो इट्स मोर अगेन पेपर 2 इश, तो पेपर 2 के अंदर ज़्यादा होता है, राइट? सो या इट्स नॉट गोना बी दैट हार्ड जितना मैथ के क्लास में होता था, राइट? बट इट्स लाइक बेसिक ग्राफ की नॉलेज. ठीक है, so the two graphs that you have in your entire study, right, is gonna be the bar graph and histogram, right? So bar graph and histogram, ठीक है ना, you might have made it in your math class, class 9 के अंदर, और क्या कहते हैं क्लास 8 के अंदर. So भारत, बट बिफोर दैट, ठीक है ना, मुझे इससे तुम लोग के बारे में एक और चीज़ के बारे में बात करनी है, राइट? दैट इज के type of data that we have. So when you have data, right? For example, वहाँ पर जो data होगा, you can have types of data. Yes, qualitative data होगा, but you can have types of data within it. बोलना क्या चाह रहा हूँ? See, some data, right, is gonna be known as क्या कहते हैं some data you're gonna be having an ordinal data. इन सब का मतलब बताऊँ. Ordinal data क्या होता है, right? Some data is gonna be continuous in nature, right? Continuous data. And जो तीसरा type of data you're gonna have is ordinal, yeah, categorical. Alright, so it's your job to find out कि भाई हमारा जो type of data आ रहा है that we're measuring, right? कौन सा आ रहा है? For example, तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि स्टडी के अंदर you need to find the difference in math scores between males and females. तो females का मैथ स्कोर कितना आता है and males का मैथ स्कोर कितना आता है, right? Alright, so अभी तक इसके ऊपर नहीं जाओ, right? अभी just focus on this. तो तुम at the end of the day, right, you're finding differences between males and females. That's it, right? अच्छा, तो I'm gonna ask you this very simple question, right? Males and females, right? Are they two different things or are they the same thing? All right, so first of all, we have established they're different things. All right, number one, ठीक है. Uh, so because they're different, right? I'm gonna ask you this: can we consider males and females to be different categories then? Acha. Third question:
Males and females, right? Just males and female. I'm not talking about number of females. I'm not talking about number of males. I'm just talking about the word male and the word female, right? What does it mean? मर्द और औरत. क्या हम इनको रैंकिंग के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं? As in males will come first, females come second, या females come first, males come second. Is there any rank to arrange these people? Yeah, there is no order. We cannot know who's greater, who's. सो एक मिनट, आर यू सेइंग कि हम इनको ऑर्डर पर अरेंज कर सकते हैं या इनको ऑर्डर पर अरेंज नहीं कर सकते? किस तरह? नहीं, आई एम नॉट अबाउट स्कोर. अच्छा, मेल फीमेल को छोड़ के, राइट? लेट्स सपोज तुम्हारा नाम शहरियार है, राइट? और अभी दूसरी जो स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर लीजा नाम, राइट? Not talking about math source, I'm not talking about anything, just you guys. Based on just you guys, can I rank you who's superior, who's inferior? So males and females, we can't rank when we talk about just males and females, right? So basically, now you have a thing, yeah, you have a variable, जो पहली बात ये are representing two or more than one different categories, number one. And number two, you cannot arrange these categories in a rank, right? वैसे नहीं कर सकते. So you need some additional information to arrange them in a rank. वैसे in its entirety, you cannot do that, right? Examples of these can be names of countries, right? Countries को आप rank के अंदर arrange नहीं कर सकते unless and until you give it more information. So proper nouns, right? Race, religion, क्या कहते हैं? Proper nouns, race, religion, ऐसे लोगों के नाम हो गए, gender हो गया, for example, और क्या कहेंगे? Let's try one more, which is race भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया. Yeah, political beliefs, right? Are they left wing, right wing, जो भी है. We can't arrange them in a in a क्या कहते हैं, order, ठीक है ना? As it is. So those variables जहाँ पे हम मानते हैं कि यार ये कैटेगरीज अलग है लेकिन इनकी कोई आपस में रैंकिंग नहीं है, these are known as categorical variables, right? I'm going to tell you the difference between categorical variables जिसके अंदर हम रैंकिंग नहीं कर सकते and those variables जिसके अंदर रैंकिंग कर सकते हैं, so that it becomes clear. So males and females, right? Islam, Christianity, whatever, does not have any ranking on its own. So basically, you're gonna have two categories. For example, when you're transgender and transgenders, right? So now we have three categories. Okay, and these three categories, right? I'm gonna say none is inferior, none is superior, right? So the way I write these variables, male speller, female speller, trans speller, does not represent its order. So yes, so it does not have an order. Ordinal. So like, what about the variables which will have order? Just some variables are going to be separate categories, but they're going to have an order as well. तो separate categories भी होंगे लेकिन order भी होगा. For example, the difference in math scores between junior employees and senior employees. Number one, see again. So like at one time, right, you can be either a junior employee or a senior employee, right? You cannot be both at the same time. You can. So basically, this would represent two different categories, but these categories now can be arranged in order. Okay, we're talking about junior, senior, superior ranking की बात कर रहे हैं, right? तो इसके अंदर junior पहला आएगा, senior बाद में आएगा. So this will have an order. So it's a category, but it's gonna have an order as well. So it's gonna be known as an ordinal variable. इसको हम ordinal कहते हैं. More example of these can be military ranks. For example,
difference of math scores या difference in aggression between क्या कहते हैं corporal जो सबसे नीचे वाला होता है, then captain, then general, right? So corporal, captain, general, ranking, you can arrange them in that order. Another example is we can say age groups are also examples of ordinal. For example, childhood, teenage, and क्या कहते हैं old age, right? इसकी भी कोई ना कोई ranking नजर आ जाएगा, and ये भी तीन categories है, right? The person who's right here, right now, childhood के अंदर है, at that present moment, cannot come in those two groups, right? So that's why इसको हम कहते हैं separate categories, but these categories have an order, so that's why they're ordinal as well. हम इसको भी ऐसा कर सकते हैं. For example, if we have ranges, ranges होते हैं ना, like एक से लेके पाँच, पाँच लेके छः, सॉरी पाँच से लेके दस, दस से लेके 15. So even though यहाँ पे numbers दिए हुए, but you can numbers भी तीन हिस्सों में या तीन कैटेगरीज के डिवाइड हो गई, तो और इन तीन कैटेगरीज डिवाइड होने के बाद भी you can arrange them in some order. So these also make it an ordinal variable. Does that make sense? So ordinal and categorical variable, right? खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि यार ये ordinal में आ रहा है, categorical में आ रहा है. ठीक है. So अब continuous की बात करता हूँ. Continuous variable, right, are those variables, number one, that don't have a separate category. ठीक है. Continuous variable वो variable होता है जो जिसकी सब एक category अलग से नहीं होती. So categorical variable, right, don't have separate categories. Number two, there are no divisions. Yeah, there's no breaks in that data. For example, अगर मैं division डाल दूंगा ना, for example, तो उसका मतलब मैंने कैटेगरी बनाना शुरू कर दी, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता, एक लंबा सा लाइक सीक्वेंस जा रहा होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रेक्स नहीं हो रहे होते. सो एग्जांपल ऑफ दिस, राइट, मैं तो बताऊंगा, कैन बी हाइट. ठीक है. मैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1.1 फीट से लेके मैं 1.2 1.3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 2 3 4 5 6 कर करके I'm gonna reach to 7 feet, right? That's gonna make it a continuous data. But if I do 1.1 foot से लेके 5 foot की एक डिवीजन बना दूं, फिर 5 foot 1 feet से लेके 7 foot का दूसरा ग्रुप कर दो, right? So when I start making groups based on height, for example, एक तरीका ये कि मैं I count the number of people जो 1.1 फुट के हैं, फिर 1.2 फुट के हैं, फिर 1.3 फुट के हैं, फिर 1.4 फुट के हैं, 1.5 फुट के हैं, फिर 1.6 फुट के हैं. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये, जो भी इन दोनों इस हाइट के रेंजेस के अंदर डाला उन सबको एक ही ग्रुप में कर दूंगा, एंड जो इस हाइट के रेंज के अंदर मैं इन सबको एक ही ग्रुप में कर दूंगा. ये जो दूसरा तरीका है ना, दिस इज गोना मेक separate categories, and these separate categories are going to have ranks, just ordinal है. लेकिन if I don't make groupings जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, and हर एक एक नंबर को अलग कंसिडर कर रहा हूँ, right? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 9 10 फिर 7 foot. It's going to be continuous. एक सी और एग्जांपल देता हूँ. डिस्टेंस 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिखता रहूँगा मैं 100 तक. सही है. डिस्टेंस इज गोना बी क्या कहते हैं कंटिन्यूस. एज 0 एज 1 एज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पूरा आखिर तक, लाइक लेट्स सपोज 100 तक लिख लो, दैट्स कंटिन्यूस, राइट? कंटिन्यूस डेटा विल क्या कहते हैं have every single number taken like from the beginning to the end.
सो ज्यादातर क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, राइट? फॉर एग्जांपल मैथ स्कोर, ठीक है ना, इसके अंदर जो है दिस इज ऑर्डिनल। मैथ स्कोर जो है ना ये कंटिन्यूस है। क्यों? मैथ स्कोर कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड जितना भी हाईएस्ट वैल्यू इसका। लेट्स सपोज आउट ऑफ 10 का टेस्ट लो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. If I write it this way, the math score becomes continuous, right? But if I ask who gets 0 से लेके 5 तक and who gets 6 से लेके 10 तक, this becomes ordinal. ये ordinal कर देगा. And if I convert math scores into grades, ये भाई A, B, C, D, E, ये भी ordinal कर देगा. क्योंकि ये ग्रेड्स सेपरेट कैटेगरीज है, इनका ऑर्डर भी अरेंज हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है, ये सेपरेट कैटेगरी, ये सेपरेट कैटेगरी। दिस डज नॉट सिग्निफाई एनी कैटेगरी। इसका मतलब है आप इसके अंदर ना कहीं भी आ सकते हो, एंड जहां पे भी आओगे ना, you're gonna be considered a part of one category, right? For example, इसी कैटेगरी के अंदर 1 वाला भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी कैटेगरी के अंदर 10 वाला भी रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज बना दी, 0 वाला अलग कैटेगरी में चला गया, 10 वाला अलग कैटेगरी में चला गया, एंड यहाँ पे हमने 5 कैटेगरीज बना दी, so it's gonna make it ordinal as well. So any data that has a, क्या कहते हैं, continuous data set, ठीक है ना, is gonna be known as a continuous variable, right? जहाँ पे तो नंबर्स के अंदर रेंजेस डालना शुरू कर दोगे ना, that's gonna make it an ordinal variable, even though यहाँ पे numbers represented है and 1 से लेके 15 तक पूरे numbers represented होंगे, but क्योंकि तुमने numbers के groups बना दिए, as in 1 से लेके 5 वाले group 1 होंगे, group 2 होंगे, ये group 3 होगा, right? लेकिन if I want to make it continuous, there's only gonna be one group. There's only gonna be one group that is gonna be 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, right? This is it. This is continuous. So do you understand what continuous variables are then? All right. So I'm gonna क्या कहते हैं, I'm gonna fire quick shots at you, ठीक है ना? You're gonna basically tell me कि क्या कहते हैं, ordinal है, continuous है, या वो है categorical, ठीक है? All right. For example, Susan and Maria. Uh, क्या कहते हैं, employee and a manager. All right. Oh, all right. Heavy, light, and medium. Heavy, light, and medium. ठीक है. All right. 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg. ठीक है. Yeah. So you get it. So now when you understand कि कौन से वेरिएबल्स कौन से वाले हैं, अब तो हम थोड़ा इसके अभी ग्राफ्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है? बट नॉट येट. आई एम गोना कंबाइन मीन मीडियन मोड इनटू, क्या कहते हैं ये, सो क्वेश्चन इज, ठीक है ना, जब ये तीन चीजें होती हैं, राइट, तो कौन से ग्राफ बनते हैं, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है? इससे पहले मीन मीडियन मोड इनके लिए कौन सा अप्लाई होंगे? ऑलराइट, सो सबसे पहले you need to know कि मीडियन के लिए you need a middle, you need to find the middle value, right? Middle value, as in middle value निकालने के लिए you सबसे पहले, let's suppose we have these
these values, right? And you need to find किसके अंदर middle value कौन सा. You know the first step is you need to arrange them into order, right? 5, 6, 7, right? And इसके हिसाब से you find the middle value is 5. ठीक है, 5 is the middle value. Alright, I'm gonna ask you this. Can you find a median अगर हम चीजों को sequence में arrange नहीं कर सकते? So based on that logic, ठीक है ना, इन तीनों में से किस में median लग सकता है? नहीं, ordinal. Ordinal के अंदर you have things in order, right? So because you have things arranged in an order, वहाँ पे it's very very easy to find the median, right? अगर जहाँ पे चीजें order के अंदर arrange नहीं होंगी वहाँ पे median नहीं निकल सकता, ठीक है ना? So that's why क्या कहते हैं, अगर ordered है ही नहीं तो median निकल नहीं सकता. For example, continuous sorry categorical variable के अंदर how can you arrange them in an order? You can't, so वहाँ पे नहीं निकल सकता, right? Continuous variable के अंदर क्या कहते हैं, निकल तो सकता है, राइट? बट फायदा नहीं होगा निकालने का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह होगा ना. तो ये होते ही असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, तो इनका मजा नहीं आएगा, ठीक है, इनका मजा नहीं आएगा, इनका फंक्शन कुछ और इनका मजा नहीं आएगा. तो इस बेसिक्स का मिडिल वैल्यू कौन सा है बेसिक तुम्हें पता लग जाएगा होते ही ऑर्डर में, ठीक है ना. लेकिन हम असल में मीडियन निकालना होता है उन वैल्यूज का जो रैंकिंग के अंदर होते हैं, राइट? एंड उसके लिए तुम्हें ऑर्डर मालूम होना मस्ट है, जो ऑर्डिनल के अंदर हमेशा हमेशा गारंटीड होगा, क्योंकि ऑर्डिनल के नाम के अंदर ऑर्डर आ रहा है, राइट? सो मीडियन इज बेस्ट यूज फॉर सिचुएशन जहाँ पे चीजें ऑर्डर के अंदर या रैंकिंग के हिसाब से अरेंज हो, राइट? ठीक है. अच्छा, ना उसी लॉजिक पे, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहते हैं कैटेगरीज, मेल्स वर्सेस फीमेल्स, राइट? अब कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर यू कंपेयरिंग बेसिकली मेल्स एंड फीमेल्स, राइट? एंड तो होता क्या है कि व्हेन यू हैव टू कैटेगरीज, राइट, ज़्यादातर you're gonna have a situation where you're gonna use the mode, right? You're gonna count male, you're gonna count females, right? And you're gonna reach the conclusion कि भाई सबसे ज़्यादा frequent आपस में कौन सी है, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल ऐसे ही होता है ना कि लेट्स सपोज इलेक्शन हो रहा है, राइट? तुम इसका नाम गिनते हो और इसका नाम गिनते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डिसाइड कि भाई किसका नाम सबसे ज्यादा है, राइट? सो व्हेन यू जस्ट I'm talking about situation जहाँ पे just not talking combination of two variables. When you have only one variable, that is categorical. वहाँ पे तुम मोड के हवाले से काम कर रहे होगे, राइट? When you have one variable which is ordinal, वहाँ पे फिर median का वास्ते काम करोगे. And when you have one variable which is categorical, you guessed it, यहाँ पे mean लगेगा, average लगेगा इनका, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि you cannot find the average of males plus females, क्योंकि मेल को आप फीमेल के साथ मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि these are words, right? इनको आप ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल kgs, kilograms को आप ऐड कर सकते हो, राइट? Any numbers you can add together to find the average, right? Median, as I said, does not need to be numbers, right? Median can also be क्या कहते हैं, supervisor, junior, supervisor, right? तो हम median लाजमी नहीं कि word number के form में, you can have क्या कहते हैं these type of median as well, जहाँ पे आपको wording के अंदर चीज़ें arrange करनी पड़े, right? So your sure bet is to find the क्या कहते हैं mean in terms of continuous variable. I'm gonna give you example किस तरह. All right. Let's do the math and math score, ठीक है ना, male female इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, right? That's the problem. All right. So क्या कहते हैं, let's make two groups, right?
सही, तो मेल्स इधर, फीमेल्स इधर, राइट? ठीक है, मेल का मैथ स्कोर नंबर 1 इज, अच्छा, द मैथ स्कोर कैन रेंज फ्रॉम 0 से लेके 10 तक, राइट? तो 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेल्स का मैथ स्कोर, ठीक है, एक का 4, दूसरे का 5 6, चलो, दूसरे का 9, उसका 10, किसी का 1 और किसी का आता है 5, ठीक है ना? फीमेल्स 5 6 4 8 10 और 9, ठीक है। I want to find out के who has the better math score. Acha. Now I'm not dealing with males and females alone. I'm dealing males and females in combination of scores. Okay. So I need to break them apart. So male and female हट जाओ side पे. What do I do alone with the scores? Scores के alone क्या करूँगा? Obviously, as I said, क्योंकि scores alone can be considered as a continuous variable. So I'm gonna take the average of ये. I'm gonna take the average of ये. I'm not gonna look at male and female अभी. I'm just gonna look at continuous variable alone. ठीक है. So 4 plus 6 plus 9 is क्या 19 29 30 35, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? So 35 divided by 6, जो भी आता है, and what 11 12 13 14 22 32 32 plus 42. So ये वाला is gonna be 42 divided by 6. So 42 divided by 6 is gonna be higher than 35 divided by 6. So basically females are gonna have the better average, ठीक है? All right. So females are gonna have the better average, ठीक है? So what you want to do is break your data into variables. All right, what's the continuous variable? This is the continuous variable alone. Males and female को side पे डाल दिया. Just look at these numbers. Numbers के आप क्या कर निकालोगे? Average निकालोगे, right? आपने average निकाल दिया. That's done. All right. यहाँ पे मोड वाला सीन किस तरह आएगा? फॉर एग्जाम्पल यू काउंट, यहाँ पे मेरे पास मेल्स कितने हैं, राइट? मेरे पास मेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 मेल्स हैं। यहाँ पे फीमेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट्स गोना बी द मोड, राइट? तुम सिर्फ कैटेगरी को कंसिडर करोगे तो यू कैन ओनली काउंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस वी जस्ट फाइंड आउट द मोड, ठीक है? सो देयर इज नो मोड क्योंकि फीमेल्स भी इक्वल है, मेल्स भी इक्वल है, सो 6 6, so there's no more, ठीक है ना? क्योंकि both of them are even, so there's no highest या most frequent occurring number क्योंकि both are occurring most frequently. Alright, इसका मीडियन किस तरह निकालेंगे, राइट? मीडियन निकालने के लिए what you need to find out, ठीक है ना, is तुम्हें चीज़ों को रैंक करना पड़ेगा, राइट? रैंक करना पड़ेगा। तो फीमेल्स के जितने भी स्कोर हैं उनको रैंक कर दोगे, मेल्स के जितने भी स्कोर हैं उनको रैंक कर दोगे, राइट? रैंक करने के बाद यू विल फाइंड मेल्स के लिए, अगर मैं वो निकालूंगा, राइट? सो मेल्स में सबसे कमजोर नंबर बंदा 1 है, उसके बाद 4 आता है, फिर 5 आता है, 1 4 5 6 9 10. अच्छा, I'm gonna ask this very simple question, right? Yes, I considered these numbers, मैं मानता हूँ, but these numbers that I extracted, right? Does it have all the values of the continuous data set? Just some of the values of the continuous data set. ठीक है, अच्छा. So we agreed that these values are some of the values of data set, not all. ठीक है, side पे. अच्छा, लेकिन when we are finding out the better gender, कि सबसे ज़्यादा मैथ्स किस जेंडर के अंदर आ रहा है, right? So when we're calculating the average जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, is there a possibility कि हमें यहाँ इसके अंदर से सारे नंबर मिल सकते हैं? For example, someone could be getting 10, someone could be getting 0, someone could be getting 5. So is every single number over here have a possibility to be represented यहाँ पे? या मतलब फीमेल्स के हिसाब से अलग से बात करो, मेल्स के साथ मेल्स की बात करूंगा तो do males, can males possibly get 0
1 2 3 4, मतलब is every number over here having a possibility to be accounted for here, या they it was guaranteed के नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि भले 6 हो भले एक मेल हो, क्या एक मेल जितना भी यहाँ पे नंबर आए, but does every number have an equal chance? He could get a 0, he could get a 1, he could get a 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we don't know, but was every number available? So yeah, so because every number was available by that logic, right? So we're looking at over here a continuous data set, right? Every number could have been available. So because every number could have been available, right? हम यहाँ पे continuous data set की बात करेंगे. लेकिन जब नंबर आ गए, हमने देख लिए, एवरेज निकाल दिया, ठीक है ना, बाकी सब काम साइड पे हो गया. एवरेज निकालने के बाद अब जो भी नंबर था वही है. एवरेज निकालने से पहले यस देयर कुड हैव बीन मेनी नंबर्स दैट कुड हैव बीन पॉसिबल, राइट? एवरेज निकालने के बाद बात खत्म, जो नंबर आ गया आ गया, नहीं आया नहीं आया, तो एवरेज चैप्टर क्लोज कर दे कंटिन्यूस का. अब जितने भी नंबर तुम्हारे पास यहाँ पे हैं, ये वाला नंबर, so these numbers, right, does not represent the entire data set. These numbers represent some of the numbers in data set. तो पहली बात है, because they represent some of the numbers in data set cannot be classified continuous. क्यों? The numbers missing यहाँ पे, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, so पहली बात है कंटिन्यूस नहीं कहलाएंगे. बट क्योंकि कंटिन्यूस नहीं कहलाएंगे इसका मतलब ये बेकार नहीं है, इनको हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. यस, तो ये अब ये ऑर्डिनल बन जाएंगे. इनसे तुम कर क्या सकते हो, इनसे तुम मीडियन निकाल सकते हो. दैट्स व्हाई ये वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है. Does that make sense? सही है. तो मतलब इतना इन डेप्थ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 मार्क के लिए आता है, बट डेटा एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं यार. आई नीड टू फाइंड आउट दोनों ग्रुप में से कौन सा बेहतर है, एवरेज मारोगे, उसके स्कोर का उसके स्कोर का, राइट? उसके बाद तुम मीडियन निकाल दोगे, वही है. इतना क्लियर? अच्छा, ऑलराइट. अब हम आई टोल्ड यू कि हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, राइट? तो ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं. तुम्हारे पास 3 ग्राफ्स हैं, 3. अभी मैं हाँ तीनों के बारे में बात करूंगा. जब तीसरे के बारे में बात करूंगा, वी स्टार्ट अ न्यू डायमेंशन ऑफ रिसर्च मेथड्स. लंबा हो जाएगा. अच्छा, सो या तुम्हारे पास जो ग्राफ बनता है, राइट, और प्लीज रिमेंबर कि देयर इज अ वर्टिकल एक्सिस प्लस एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट? हमेशा ये याद रखना. ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है? अब बच्चे पूछते हैं ये वर्ड ऊपर ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, हमेशा याद रखना यार. सिंपल ट्रिक फॉर्मूला जो क्या कहते हैं, आईवी होता है ना, आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? वो आता है नीचे. आईवी आएगा नीचे, राइट? आईवी हमेशा यहाँ नीचे रखते हो. डीवी जो होगा ना, वो यहाँ लिखोगे, ठीक है? So math scores and genders, right? Who has the better math score, males or females, right? So I'm gonna ask you this by that logic, right? IB क्या होगा, DB क्या होगा gender math scores में? Score is DB, right? So score आपका DB होगा ना, score तो उसका मतलब आप यहाँ प्लॉट करोगे, right? यहाँ पे एंड मेल्स या जेंडर इधर आएगा. तो बेसिकली इट्स गोना मेक सेंस. क्यों? क्योंकि जब तुम प्लॉट कर रहे होगे ना, ठीक है, तो इट्स गोना बी लाइक दैट. फॉर एग्जांपल मेल्स यहाँ पे आएगा, राइट? मेल्स
अच्छा मैं फीमेल्स भी लिख सकता हूँ, मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि फीमेल मेल का कोई ऑर्डर नहीं है, तो व्हाटएवर आई कैन राइट पहले डजंट मैटर, राइट? मैं फीमेल इधर रखूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, और जो मैंने एवरेज निकाला ना, फॉर एग्जांपल जो भी एवरेज था, वी फाउंड आउट कि फीमेल का एवरेज थोड़ा ज़्यादा था, तो दिस इज द ग्राफ आई एम गोना हैव। मेल्स का इतना एवरेज आ रहा है लेट्स सपोज, एंड फीमेल्स का थोड़ा ज़्यादा एवरेज था, तो इनका इतना आ रहा है, राइट? ठीक है, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ। मतलब अगर मैं मेल इधर डालूंगा ना, इज गोना मेक द ग्राफ लाइक दिस, इस तरह टेढ़ा बनेगा ग्राफ, राइट? इस तरह फिर बन जाएगा। अगर मैं मेल को इधर डालता हूँ, फीमेल को इधर डालता हूँ, एंड स्कोर के इधर डालूँ, एंड तुमने आज तक ऐसा ग्राफ देखा होगा नहीं, दैट्स व्हाई हम हमेशा डीबी ऊपर की तरफ डालते हैं, एंड आईवी हमेशा नीचे की तरफ डालते हैं। सो अच्छा, तो प्लीज इसको याद रखना, आईवी डीबी कहाँ पे आएगा। अच्छा, आई एम गोना आस्क दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम ग्राफ बना रहे हैं मैथ स्कोर का, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैथ स्कोर अकेले का ग्राफ नहीं है, ठीक है। मैथ स्कोर इन जेंडर के बारे में है, ठीक है। सो इन जेंडर के बारे में जब मैं मैथ स्कोर के बारे में ग्राफ बना रहा हूँ, राइट? सो तुम्हें याद रखना कि जिनके बारे में whatever my IV is, right, जिनके बारे में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, राइट, तुम्हारा जो ग्राफ बनता है हमेशा IV को कंसिडर करके बनता है। क्यों? आई एम गोना टेल यू व्हाई। जिस जो तुम्हारा IV होगा ना, भले वो ऑर्डिनल बन जाए, या तुम्हारा IV वो ऑर्डिनल हो या कैटेगोरिकल हो, राइट? या तुम्हारा IV कभी कभार वो भी हो सकता है, क्या कहता है उसको, continuous. It'll depend on what type of graph you make. Let's talk about categorical पहले. So you agree कि males and females are अलग categories, right? अच्छा, तो सबसे मैं पूछता हूँ कि इनके ग्राफ दोनों के एक ही ग्राफ बनेंगे, अलग अलग ग्राफ बनेंगे? ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें याद होगा यार, बचपन में हम ऐसे ग्राफ बनाते थे, जो कभी कभार ऐसा भी होता था, ये ऐसा होता था, याद है ऐसा होता था बचपन में? कभी ऐसा ग्राफ देखा? हिस्टोग्राम, राइट? अच्छा, अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ है, तो बताते होंगे यार ये गैप्स होता है, वो बार ग्राफ होता है, जिसमें गैप्स नहीं होता हिस्टोग्राम आता है। ये लॉजिक याद है? अच्छा, इसकी वजह लॉजिक गैप्स और गैप्स होने से थोड़ा बढ़ के कि भाई गैप्स का मतलब ये है कि यू लिटरली सिग्निफाइंग ये और ये बिल्कुल अलग चीज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने गैप डाला है, ठीक है। अच्छा, तो वेर यू रिकग्नाइज कि यार ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, वहां पे तुम गैप लाजमी देते हो। मेल एंड फीमेल अलग कैटेगरी, लेट्स सपोज हम रैंक के साथ करते हैं, जूनियर ऑफिसर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सीनियर ऑफिसर, ठीक है ना। जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अलग कैटेगरीज, लेकिन हमें यहाँ रैंक में भी लोग को अरेंज करें तो ऑब्वियसली जूनियर पहले आएगा, सीनियर बाद में आएगा, ठीक है ना, एंड इन दोनों के बीच में गैप होगा। सो इट इज ऑर्डिनल, लेकिन ऑर्डिनल किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है? जिस तरह तुमने नीचे ऑर्डर में अरेंज किया, पहले जूनियर आएगा फिर बाद में सीनियर आएगा, दिस केस टेक्स केयर तो ऑर्डिनल। अब तो मतलब ऑर्डिनल के अंदर भी सेपरेट कैटेगरीज होती हैं, फर्क क्या है कि वो ऑर्डर में अरेंज होती है। सो दिस गैप रिप्रेजेंट्स कि भाई अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो दिस वाज व्हेन योर आईवी वाज समथिंग ordinal. What happens when the IV is continuous? ठीक है ना, कंटिन्यूस आईवी बनेगा, कंटिन्यूस आईवी बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा कंटिन्यूस आईवी, सही है। सो मैथ्स को मालूम करना है, राइट? क्या कर रहा हूँ मैं, मैथ स्कोर मालूम करना है। मैं बताया था मैथ स्कोर जो है ना,
7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, बढ़ा दिया। इसको मैं नीचे कर दिया ताकि थोड़ा टाइम मिल गया। अच्छा भाई, तो मैथ स्कोर विच एज लिखा है मैंने, एज ग्रुप नहीं लिखा। एज ग्रुप करूंगा क्या बन जाएगा? और लो, ठीक है। तो विच एज हैज द हाईएस्ट math score, right? So that's my basic idea. ठीक है ना? तो math score and age, ये math score ages। IV is my age, right? ठीक है, हमेशा याद रखना कि भाई मैथमेटिकल स्कोर मेजर होता है, एज तो पहले से ही मौजूद है, वी डोंट नीड टू मेजर इट। सो बेसिकली मैथ स्कोर इज गोना बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, राइट? सो हम क्या करेंगे, बस लेट्स सपोज वी आर टेकिंग किड्स 15 16 17 18 19 20 21 and 22। So we have kids of these ages। ठीक है, अब करेंगे क्या, 15 साल के जितने बच्चे हैं, राइट, उनका एवरेज मैथ स्कोर कितना होगा? वो 15 साल के जो बच्चे, एवरेज स्कोर मैथ स्कोर 7, राइट। 16 साल के एवरेज मैथ स्कोर क्या होगा? 16 साल के बच्चे जो हैं, ये होता है हिस्टोग्राम। ठीक है ना? वो शायद अलाइन नहीं करें, ठीक है ना, नीचे वैल्यूज हैं वो ग्राफ के साथ, लेकिन वैसे ही सही से अगर टाइम लगा के बनाता तो हो जाता। अच्छा, अब इसमें मैंने गैप्स क्यों नहीं थे? इवन तो 15 साल का बच्चा अलग है, 16 साल का बच्चा अलग है, 17 साल का बच्चा अलग है, 18 साल का बच्चा अलग है। क्योंकि मैंने इसलिए गैप नहीं दी क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ना, ये एक ही कैटेगरी के वेरिएबल्स वो है बच्चे, एज। सो हिस्टोग्राम का मतलब है जो भी मेरे यहाँ पे नीचे आई हुई है ना, दीज आर पार्ट ऑफ वन कैटेगरी। जिस वक्त मैंने गैप देना शुरू कर देना, आई एम गोना से कि भाई देयर पार्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। बट क्योंकि आई सेड एज, अब एज पूरा ही इतना बड़ा कैटेगरी जहाँ पे पूरे कैटेगरी के अंदर 22 से लेके 25 15 से जो भी लोग हैं ना, एक ही कैटेगरी के अंदर है। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर कोई गैप्स नहीं होते। तो कंटिन्यूस के अंदर हमेशा गैप्स नहीं होंगे, राइट? Continuous is part of one big category. So because you have everything in inside one category, they're part of one category, so there's not going to be gaps. अगर मैं इसको एज ग्रुप कर दूंगा ना, टीनेजर्स वर्सेस क्या कहते हैं यार, adults, सही है। सो बेसिकली 15 से लेकर 19 तक का एक कैटेगरी हो जाएगा, और 20 से लेकर 22 का अलग कैटेगरी हो जाएगा। एंड दिस कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है ना? ये ऑर्डिनल बन गया, इसका मतलब ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है। सो गैप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज। Continuous data does not have any category inside them क्योंकि continuous data is itself a one big category, that's why you don't have gaps। So that's why in continuous data जितना IV continuous form में है, you're going to use histogram, ordinal form में, categorical form में, you're going to use bar graph। Is that logic clear? ठीक है, तो यही है कि बस तुम्हें बार तो बोलना होता है कि भाई मैं बार ग्राफ करूंगा या वो करूंगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर आईवी किस तरीके का आए। ऑलराइट, आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स। इसमें यहाँ पे लिख दूँ, बार है, ये भी बार है, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, तीसरा ग्राफ समझने के लिए ना,
तुम्हें इससे पहले मुझे थोड़ा वो बताना पड़ेगा कि यार ये कॉजल तुम्हें पता है कोरिलेशनल स्टडी क्या होता है? इफ यस तो क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन इट अपने ओन वर्ड्स में? अच्छा, कोरिलेशन में, अच्छा कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या फर्क है? ठीक है, कोई मसला नहीं। कॉजल स्टडी वो होता है जहाँ पे वी कैन गारंटी एट द एंड ऑफ द डे, स्टडी करने के बाद वी कैन फॉर श्योर से कि भाई this factor xyz factor is going to cause this factor, ठीक है ना? For sure we can say this. Well, you want to say 100%, ठीक है ना? Well, that's the 100% यही होता है, ठीक है? For example, आग जलाने से धुआं निकलता है, ठीक है? 100%. So this is the cause, this is the effect. इन दोनों के बीच में तुमने relationship establish कर दिया. That is gonna be causal relationship, right? Sometimes you can't do that. Sometimes you cannot find exactly what the cause is, ठीक है? And you sometimes do this most of the times. Most of the times हम यहाँ पे चल रहे होते हैं. आपकी साइकोलॉजी के अंदर जो स्टडीज है वो थोड़ी एडवांस लेवल की, जो हर कोई कर नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई उसके हैवी डीवी की बात हो रही होगी. ज़्यादातर पाकिस्तान में जो साइकोलॉजी की स्टडीज हो रही थी, राइट, वो ज़्यादातर कोरिलेशनल होती हैं, बेसिक स्टडी. तो तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, तुम में भी कोरिलेशन स्टडी करने को देंगे. होता क्या है कोरिलेशन स्टडी के अंदर? लेट्स सपोज कि भाई हाइट जो है ना, आपकी हाइट किस वजह से बढ़ती है? तुम कहोगे भाई हाइट जो है जीन्स की वजह से बढ़ती है, ठीक है? जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, ठीक है ना? मोस्ट पीपल विल से दैट, ठीक है? अच्छा, मोस्ट पीपल विल से कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये कॉजल बनाना चाहते करना चाहेंगे कि जीन्स को कॉज कर देंगे और हाइट को अफेक्ट कर देंगे, कि जीन्स विल अफेक्ट योर हाइट. ठीक है, सही बात है, मसला नहीं है. पर कोई और सवाल पूछता है, ठीक है, आर जीन्स द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस योर हाइट? जीन्स के अलावा आपके पास डाइट भी आएगी, योर एक्टिविटी, राइट, क्या कहते हैं, डाइट, एक्टिविटी, एंड इसके अलावा शायद योर लाइफ एक्टिविटी हो गया. एक मिनट, तो you asked a question, क्या है? Age, yeah, your age also. जितना तुम्हारा उम्र बढ़ेगा उतना तुम्हारा हाइट बढ़ेगी. Your age, right? Age as well. And also gravity. जितनी ज़्यादा तुम्हारा ग्रेविटी तुम्हारे पर असर कर, तुम्हारा कद उतना छोटा रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी. These things impact your height. अच्छा, so because there are many things that can impact your height, it's very difficult to find out exactly which is going to impact your height. What is going to cause, so what is the cause of your height? It's very difficult to distinguish, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, right? So environment में यही होता है. As in,
फॉर एग्जाम्पल गुर्बत क्यों हो रही है? कुछ लोग कहेंगे इन्फ्लेशन की वजह से, कुछ लोग कहेंगे यू नो व्हाट पॉलिसीज की वजह से. तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ कॉज. सो व्हेन यू हैव दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू डू अ कोरिलेशनल स्टडी. कोरिलेशनल स्टडी का पहला स्टेप क्या होगा? टू फाइंड आउट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस फैक्टर का है. ठीक है ना? जितना वो फैक्टर पता चल जाएगा, देन यू आइसोलेटेड. एंड सेकंड स्टेप फिर क्या करोगे तुम? कॉजल रिलेशनशिप चेक करोगे. फॉर एग्जांपल उस फैक्टर को तुम देखोगे हाइट के साथ एनसी के कॉजल रिलेशनशिप आता है कि नहीं आता. ठीक है, लेकिन विच वेरिएबल टू स्टडी इन आइसोलेशन वो तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा. सो टू फाइंड इट आउट तुम सबसे पहले कोरिलेशन स्टडी करते हो, राइट, कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का आ रहा है. फिर तुम आगे जाकर इसको अलग स्टडी करोगे. तो कोरिलेशन स्टडी के अंदर तुम बेसिकली ये देखना चाहते हो कि यार पॉजिटिव नेगेटिव या ठीक है. तो यू हैव दीज कोरिलेशंस. तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले जीन्स के साथ करेंगे. उस पर डाइट करेंगे. जितनी डाइट अच्छी होगी का उतना कद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. जितनी एक्टिविटी अच्छी होगी उतना कद, इतना कद बढ़ेगा. जितनी एज होगी उतना कद बढ़ेगा. जितनी ग्रेविटी होगी उतना कद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, राइट. तो हम ये करेंगे. एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड आउट द कोरिलेशन. कोरिलेशन किस तरह निकालते हैं मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद. एंड उस बेस पे करेंगे. ठीक है. तो कोरिलेशन जिस तरह निकालते हैं, राइट, इस तरह होता है यार. ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ये वाला. ठीक है ना. हाइट, नीचे जो भी फैक्टर आएगा, ठीक है ना. सबसे पहले हम इसको एक्टिविटी लेंगे. एक्टिविटी को नीचे डाल देंगे आई वी के अंदर. एंड वी कैन हैव दीस, ये डॉट्स बन जाएंगे हमारे. ये डॉट्स बनता है हमारे. ठीक है. या एक मिनट से अच्छा मैं तुम्हें एक और तरीके से समझा दूँ, वो बहुत बेहतर रहेगा. मैं स्पेसेस चला रहा हूँ. स्पेसेस चला रहा हूँ टू टीच कोरिलेशन. एक मिनट दे दो, थोड़ा हैवी हैवी वो है ना एप्लीकेशन, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. अच्छा भारत, आ, मैंने बोला था हाइट, राइट. चेक कर हाइट. ठीक है. तुम यार क्या हो गया? अच्छा तुम मुझे खुद बताओ यार, हाइट जो है कौन सा वेरिएबल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूसली, या वो कैटेगोरिकल? इसके
हाइट इज गोना बी कंटिन्यूअस अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे ना, सही है, मतलब 7 फुट 1, 7 फुट 2, 7 फुट 3, 7 फुट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हाइट तुम सिंपली सेंटीमीटर से मेजर को कितना टॉल बनता है, ठीक ना, पता नहीं जितना 150 सेंटीमीटर, आई डोंट नो कितना वो सबसे छोटा हाइट है, से लेके लाइक 7 फुट को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे, समझो 3000 सेंटीमीटर से लेकर 6000 सेंटीमीटर तक, लेट्स सपोज, दैट्स गोना मेक इट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है स्केल, राइट। अच्छा, uh, हमेशा याद रखना, हाँ, ये हमेशा याद रखना, जब तुम कोरिलेशन की बात कर रहोगे ना, तुम्हारी आईवी डीवी दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए, एज इन दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म होने चाहिए, ठीक है ना, वर्डिंग के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या है, लेकिन हमेशा कहता स्टेप नंबर 1, मेक श्योर कि तुम्हारा आईवी डीवी जो भी है ना, वो तुम्हारा उसमें हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, मैं हम कहते हैं एक्टिविटी के साथ, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी a person has, ठीक है, the amount of activity can be represent number, ठीक है ना। हम हाई लो करना शुरू हो जाएंगे ना, वो फिर ऑर्डिनल बन जाएगा, उससे कोरिलेशन नहीं कर सकता। तो हमेशा इसको याद रखना, तुम्हें एक एक्टिविटी को ना एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 0 आउट ऑफ 5, सॉरी 1 आउट ऑफ 10 कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, राइट, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी आर स्टडीइंग 10 पीपल, 10 लोग का हम करेंगे, 10 लोग की स्टडी है, किसी बंदे की हाइट है 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना, किसी बंदे की हाइट है 500 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी बंदे की हाइट है राइट 1000 सेंटीमीटर, राइट, किसी बंदे की हाइट है 700 सेंटीमीटर, किसी बंदे की हाइट है 800 सेंटीमीटर, किसी बंदे की हाइट है 500 सेंटीमीटर, 1000, 1200, 1500, 15,000 हो गया, 1500, 100 एंड क्या कहते हैं 650, राइट। अब हर बंदे की एक्टिविटी कितनी होगी 0 से लेके 10 तक, ठीक है ना, देखते हैं 7 8 9 6 5 4 5 6 7 10 और 10, ठीक है, मुझे कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, जब कोरिलेशन निकलता है ना, ठीक है, टेबल का है, जब तुम्हारा कोरिलेशन निकलता है ना, ठीक है, तो तुम्हारा इस फॉर्म में निकलता है, ये नंबर है 0.463, ठीक है, जो 0.463 एज इट तुम्हारा कोरिलेशन निकलेगा ना, दैट्स गोना बी फ्रॉम -1 से लेके 0 से लेके +1 कहीं भी आ सकता है, राइट। सो वी से अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज दैट कोरिलेशन जो -1 या +1 के बिल्कुल करीब हो, राइट, as if we don't want it in the middle, 0.4, 0.5, -0.4, -0.5 नहीं चाहिए, either we want our values very close to -1 or we want our values very close to +1, ठीक है ना। जब -1 की वैल्यू करीब होगी इज मोर लीनिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव कोरिलेशन, जब +1 के करीब होगी इज मोर लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे कोरिलेशन की, कहाँ गया यार, ये रहा 0.463, so it is positive correlation, right, ठीक है, but it's not a very strong positive correlation, right? It's like somewhat weak positive correlation क्योंकि it's not close to 1, it's like very close to 0, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -0.463 आता है, हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। सो नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये मतलब होता है जितनी ज्यादा बंदे की एक्टिविटी अच्छी होगी ना, उतनी ज्यादा बंदे की हाइट बढ़ेगी, सही है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन में ये मतलब होगा कि दोनों वेरिएबल्स विल गो इन द सेम डायरेक्शन,
ठीक है. For example, if both the variable, if one increases, the other will increase as well. As in height अच्छी तो वो एक्टिविटी अच्छी, या दोनों डिक्रीज करेंगे. एक्टिविटी बुरी तो हाइट भी कम. अगर दोनों अलग डायरेक्शन जा रहे होंगे, हाइट अच्छी होगी जब एक्टिविटी आपकी खराब होगी, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर आएंगे. सही है. So when two variables move in the same direction, कि हाइट अच्छी तो एक्टिविटी अच्छी, एंड एक्टिविटी बुरी तो हाइट भी बुरी, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? जब दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. हाइट अच्छी होगी तो आपकी एक्टिविटी बुरी होनी चाहिए. ठीक है. नेगेटिव कोरिलेशन किस तरह रिप्रेजेंट होगा? बाय नेगेटिव वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम -1 से लेके 0 तक, एंड पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट बाय 0 से लेके 1 के दरमियान. द मोर क्लोजर टू -1 या 1, द मोर द स्ट्रॉन्गर द कोरिलेशन इज. इतना समझ में आ गया? ठीक है. पक्की बात है. लाइक क्या किया हमने? पॉजिटिव -1 नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन. इतना समझ में आ गया? अच्छा. तो हमने कोरिलेशन बात की थी. कोरिलेशन के अंदर हम अमूमन तौर पे बहुत सारे वेरिएबल स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिविटी के अलावा तुमने कहा था एज भी है, राइट? एज 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20, 20 और 25, राइट? अब मैं एज के साथ कोरिलेशन निकालूंगा. ठीक है. इस वेरिएबल का मुझे नाम देना एज. एज भी होता है कंटिन्यूस फॉर्म में, राइट? दोनों को कंटिन्यूस फॉर्म होना लाजमी है. अब ये दिखाता हूँ कि मैं ऑर्डिनल में कर दूंगा, ये नॉर्मल. और नॉर्मल का मतलब होता है कैटेगोरिकल. कैटेगरी में कर दूंगा ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं निकालेगा कोरिलेशन, के लिए निकल ही नहीं सकता. ठीक है. तो मैंने ये कर दिया. लेट्स फाइंड के एज के साथ को क्या कोरिलेशन है कि ठीक है, एज के साथ निकालना है, तो मैं एक्टिविटी को छोड़ के एज के साथ निकालूंगा. ठीक है. मैं करूंगा, देखते हैं भाई क्या सीन है. एंड एज के साथ कितनी कोरिलेशन है? 3.66. तो है पॉजिटिव रिलेशनशिप एज के साथ भी, क्योंकि एज जितनी बड़ी होगी इतना आपका हाइट बढ़ेगा. लेकिन लेट्स कंपेयर द टू कोरिलेशंस ना, दोनों कंपेयर करते हैं, राइट? एक का था 3.66 हाइट एंड एज. हाइट एंड एज का 3.66 है. हाइट एंड एक्टिविटी का 4.63 है. व्हिच ऑफ देम हैज द बेटर स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन? वो तो कौन सा वेरिएबल? So is it going to be height or age? Sorry, activity या वो age? अच्छा, वो 4.63 नहीं है. द 4.63 नहीं है, वो 0.463 है, राइट? हमेशा याद रखना, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. 0.463 है ना. ये पॉइंट है, ये डेसिमल लगा. 0.36 है. ठीक है ना. अच्छा. सो बेसिकली इसके मुताबिक एक्टिविटी इज गोना हैव अ हायर कोरिलेशन विद हाइट. तो वो आवर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी कि हम हाइट को आइसोलेट करें, सॉरी, एक्टिविटी को अलग आइसोलेट करेंगे हाइट के साथ, राइट? हम एज को निगलेक्ट कर देंगे. एंड फिर देखेंगे बाकायदा अब यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप क्या है. सबसे पहले हमें ढूंढना इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन क्या होती है, पता लग गया. उसके बाद हम कॉजल रिलेशनशिप के पास जाएंगे, सो दैट वी कैन फाइनली वंस एंड ऑल फॉर ऑल से कि एक्टिविटी इन्फ्लुएंसेस हाइट. पर उससे पहले हमें ये करना पड़ता है जब हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हो रहे होते हैं. सही ना. सो ये कोरिलेशन वाला सीन समझ में आ गई होता क्या है. अच्छा. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यार मैं जबरदस्ती करूंगा ना यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, दस आई इंट्रोड्यूस थर्ड वेरिएबल मेल, जेंडर. ठीक है. जेंडर की वेरिएबल डालता हूँ मैं. जेंडर इज नॉट गोना बी ऑर्डिनल या स्केल. कंटिन्यूस गोना बी कैटेगोरिकल. तो कैटेगोरिकल दूसरा नाम ये मैं बता दूंगा. मतलब कैटेगरी 1 होगी मेल. ठीक है. एंड 2 होगी फीमेल. मैं टू को मेल भी बना सकता हूँ, मसला नहीं है. ठीक है. तो
या मैं एज हाइट का जेंडर के साथ कोरिलेशन निकालूंगा ना, एनालाइज कोरिलेशन बाय वेरिएट, ठीक है, हाइट और जेंडर का निकालूंगा मैं। चाहिए ठीक है, हालांकि इसने निकाल तो लिया राइट, निकालना तो नहीं चाहता, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, लेकिन बार समटाइम द सॉफ्टवेयर मेक्स मिस्टेक, लेकिन निकाल नहीं सकता क्योंकि यू कैनॉट फाइंड कोरिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स। इसके पीछे लॉजिक में, जब तुम ग्राफ बनाते हो ना, जो ग्राफ कहाँ से आता है? कहाँ गया यार, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं बताया था कि हाइट आपका आएगा डीवी के अंदर राइट, आपकी एक्टिविटी आएगी यहाँ पे राइट। अब ये इसलिए ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि दोनों वो हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जेंडर को ना यहाँ पे डालूंगा लेकिन बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट मेक इट। तो तुम्हें ये वाले ग्राफ बनाने के लिए, अभी हम मैं ग्राफ का नाम बताऊंगा होता क्या है। असल में वी मेक दिस ग्राफ राइट, हम क्या करते, इस ग्राफ के अंदर याद है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं लाइन गुजारूंगा, ये कोरिलेशन के अंदर होता है राइट। सो बेसिक कोरिलेशन का एंड मकसद ये होता है कि आपको एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना होगा, ठीक है ना। सो जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ फर्स्ट राइट, to make this line you need to plot a graph first, but male and female cannot be represented in numeric values, so you cannot plot a graph when you have male and female. That's why you should make sure कि दोनों वेरिएबल्स आपस में, पहली बात है, कंटिन्यूस फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, क्वालिटेटिव फॉर्म में ना हो। अगर एक भी वैल्यू क्वालिटेटिव फॉर्म में आएगा, यू कैन फाइंड अ कोरिलेशन। कोरिलेशन के शर्त नंबर वन, दोनों वैल्यूज नीड टू बी इन क्वांटिटेटिव डेटा फॉर्म। तो दोनों वैल्यू क्वांटिटेटिव डेटा फॉर्म होंगे, because at the end of the day you need to plot them on a graph, so both of them need to be numbers। आप वैल्यू देखोगे जीरो -1 से लेके +1 तक, +1 का जितना जो वैल्यू नेगेटिव साइड पर आ रही होगी नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव कोरिलेशन है राइट। सो बेसिकली यू मेक अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऊपर जा रही होगी, फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, दैट्स गोना बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, दैट्स गोना बी अ नेगेटिव कोरिलेशन। एंड अगर लाइन बेसिकली हल्की सी मिडिल की तरफ आ रही है इस तरह, ऊपर पॉइंट भी नहीं करी नीचे में पॉइंट नहीं करी, दैट्स गोना बी अ नो कोरिलेशन, एज इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में ज्यादा कोरिलेशन नहीं है राइट। सो प्लीज हमेशा इसको याद करें कि नेगेटिव कोरिलेशन इस तरह बनेगी, एज इन देखो जितनी हाइट बढ़ेगी ना उतनी एक्टिविटी आपकी कम होती रहेगी, ठीक है, तो उतनी एक्टिविटी आपकी कम होती जा रही है। सो सबसे पीक हाइट पे एक्टिविटी देखो, क्या कहते हैं, हाँ, सबसे पीक हाइट पे एक्टिविटी कितनी है, 0। सबसे लोएस्ट हाइट पे एक्टिविटी कितनी है, पीक पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बनाऊँ, यप। तो लेट्स सपोज के स्टूडेंट के मैंने इसको इवन स्पेस किया हुआ राइट। सो लेट्स सपोज 10 इधर है, आइडियल सिनेरियो के अंदर 10 इज द मैक्सिमम एक्टिविटी, हाइट कितनी है, इज द लोएस्ट हाइट।
ठीक है. So that's why it's going to be negative gradient positive करना होगा. तो the gradient is going to be this and this is going to show a positive correlation, right? कि जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्टिविटी बढ़ रही होगी, right? एंड नो कोरिलेशन इस तरह होगा. हाइट बढ़ती रहे एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्टिविटी बढ़ती रहे हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही. हाइट वही की हुई है. सो देयर इज नो कोरिलेशन. सो उसको नल कोरिलेशन कहते हैं. तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये इसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट. ठीक है, इसका नाम होता है स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट इज ओनली यूज्ड टू फाइंड इज ओनली यूज्ड फॉर कोरिलेशन क्वेश्चंस, राइट. बाकी ये सब है ना हिस्टोग्राम बार ग्राफ वगैरह, ये उसमें कॉजल रिलेशनशिप वाले स्टडीज में रखते हैं. जहाँ पे कोरिलेशन स्टडी आ जाए ना वहाँ पे तुम्हारा स्कैटर प्लॉट लगेगा. स्कैटर प्लॉट किस तरह होता है? आईवी यहाँ पे होती है, डीवी सॉरी आईवी नीचे होता है, डीवी ऊपर होता है, राइट. आप पहले डॉट्स बनाते हो, फिर डॉट्स के ऊपर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हो. लाइन ऊपर जा रही होगी तो पॉजिटिव है, लाइन नीचे जा रही है तो नेगेटिव है. लाइन बिल्कुल बीच की सीख में आ रही है तो नो कोरिलेशन. सो इज दैट क्लियर? ठीक है. तो आई एम गोना कीप इट यहाँ पे क्योंकि वी डिस्कस मेनी थिंग्स, राइट. मैं थोड़ा बहुत और कोरिलेशन बताऊंगा, थोड़ा बहुत और इसकी अगली क्लास के अंदर आई एम गोना टॉक अबाउट डेटा सेट्स थोड़ा और, देन वी आर गोना मूव ऑन टू हाइपोथेसिस. ठीक है. सो आई एम गोना स्टॉप टिल नाउ यहाँ पे. सो वी आर गोना कंटिन्यू मंडे. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़.